Okay, recording is going on. Okay, so in our last class we were discussing about basic idea. मैंने दे दिया था कि हम compound microscope को क्यों use करते हैं, because simple microscope has its limitation on magnification, and once we have choose the lens we cannot do anything anymore. उतना ज़्यादा और कुछ खास change नहीं होगा magnification में. So that is why we are going to use the compound microscope. What is compound microscope? It is a combination of two lenses. One is called as objective, जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है. वन इज कॉल्ड एज आईपीस, जो कि ऑब्जर्वर की तरफ रहता है. ऑब्जेक्ट से जो रे आता है वो एक रियल इमेज क्रिएट करता है, वन मैग्नीफाइड वन, राइट. सो ये ऑलरेडी बड़ा हो गया है साइज में. फिर से ये क्या होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है ये फर्स्ट इमेज को, so that final image will be one virtual image and it will be extremely larger. So successive magnification की वजह से इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाता है. सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कैसे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्नीफाई किया पहले, उसके बाद आईपीस ने फिर से मैग्नीफाई किया, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. एंड बिकॉज ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द मैग्निफिकेशन बिकम्स मच मोर लार्जर, राइट. सो चलो लिखना हम स्टार्ट कर देते हैं. So here first magnification is there because of the objective lens. Second magnification is there because of the eyepiece lens. So that is why magnification of compound microscope is very very large compared to the simple microscope. So यहाँ पे लिख लो, due to successive magnification, total magnification of compound microscope is you can write it down, m is equals to magnification of objective into magnification of eyepiece. एक तो पहले ये लेंस ने 2 गुना या 3 गुना कर दिया, फिर से ये लेंस ने 4 गुना या 5 गुना कर दिया. मान लो ये 2 गुना करता है और ये 3 गुना करता है, टोटल कितना हो गया? 6 गुना हो गया. मान लो ये 10 गुना करता है और ये 20 गुना करता है, टोटल कितना हो गया? 200 टाइम्स, isn't it? So 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, इसी तरह से वो बड़ा करता है, राइट. सो देन अभी चलो देखते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा. आखिर ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना है, आईपीस का मैग्निफिकेशन कितना है. सो लेट अस गो एंड राइट डाउन. यहाँ पे देखो, व्हाट इज U0, UO, it is object distance from the objective lens. What is VO? It is image distance, that is the first image distance from the objective lens. Okay, Sanjana is also there. So therefore here we can write it down. लिखना स्टार्ट कर दो. Using lens formula for objective lens, using lens formula for objective lens. लेंस फॉर्मूला वैसे क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. This is लेंस फॉर्मूला. लेकिन इस केस में क्या है? Here object distance U is equals to minus of UO और U0 क्यों है? UO क्यों है? Because it is in the left hand side. अब देखो इमेज किधर है? राइट हैंड साइड में. So therefore it will be positive. So here V will be equals to plus VO and F will be FO. So चलो इन चीजों को हम इसमें पुट कर देते हैं. So that is implied then 1 by V मतलब 1 by VO minus 1 by U, that is be 1 by minus UO, that will be equals to 1 by FO. So let us go and solve this one. By solving this one you can get it to be, ये क्या हो गया? 1 by VO plus 1 by UO, 1 by VO 1 by UO, this will be equals to 1 by FO. So that is implied then VO का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में? VO will be equals to, दूसरा वाला जाके इस साइड में माइनस UO बन जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी UO into FO डिवाइडेड बाय UO माइनस FO. इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बीच वाला मैंने एक स्टेप को स्किप किया है. कैसे स्किप किया है? दैट इज इंप्लाइड इन 1 by VO, दिस विल बी इक्वल टू 1 by FO
minus 1 by UO. इसको अगर solve करेंगे we'll be getting this answer, right? So therefore VO का value ये हो गया. So that is implied, and we can write it down. Hence magnification of objective lens is, hence magnification of objective lens is, magnification of objective lens MO. Magnification का फॉर्मूला लेंस के लिए क्या होता था? V by U. So it will be equals to V divided by U. लेकिन इस केस में V क्या है? प्लस VO और U क्या है? माइनस UO. Yes or no? So this is what we are getting. चलो V की जगह मैं उसको पुट कर लो, तो ऊपर जो हमें फॉर्मूला मिला है VO की जगह में इसको पुट कर लेते हैं. इसको अगर पुट करेंगे what we are going to get is that will be equals to minus of UOFO divided by UO minus FO whole divided by UO. So here UO will be getting cancelled. U naught. So ultimately what we are getting is magnification of objective lens, that will be equals to minus of FO divided by UO minus FO. Is it clear up to this point? इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ MO. राइट. सो हमें मैग्निफिकेशन मिल गया ऑब्जेक्टिव लेंस का. आईपीस लेंस का हम कैसे ले सकते हैं? जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लिया था. सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अगर इफ द इमेज इज क्रिएटेड नियर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द मैग्निफिकेशन वाज कमिंग आउट टू बी, कितना आ रहा था? किसी को याद है क्या? अगर नियर पॉइंट में अगर क्रिएट करेंगे देन द मैग्निफिकेशन वाज 1 प्लस डी बाई एफ, और अगर इंफिनिटी में क्रिएट करेंगे तो फिर डी बाई एफ. ये हो गया हमारा आईपीस का मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन. ये हो गया, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हो गया ना? राइट. सो देयरफॉर ओके ठीक है, हम एमओ का इसको हम दो तरह से रख सकते हैं. वन ऑफ द फॉर्मूला इज दिस वन, अनदर फॉर्मूला इज दिस वन. सो लेट्स मेक सम अरेंजमेंट एज वेल. सो दैट इज इम्प्लाई देन MO that will be equals to minus of VO divided by UO, that will also be equals to minus of FO divided by UO minus FO. ये आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट फर्स्ट केस, केस 1. राइट इट डाउन. इफ द फाइनल इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट नियर पॉइंट भी लिख लेना शॉर्ट हैंड. If the final image is produced at near point, NP लिख लेना उसको shorthand में. Then magnification of eyepiece. Then magnification of eyepiece. ME. Magnification of eyepiece is equals to 1 plus D divided by F. ये focal length किसका है? eyepiece का है, इसलिए F ही लिख लेंगे इसको. ये हो गया आईपीस का मैग्निफिकेशन और ये हो गया ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन. सो लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? सो देयरफॉर हियर यू कैन राइट इट डाउन दैट hence magnification of, hence total magnification of compound microscope is, hence total magnification of compound microscope is M is equals to मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस. मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना आया? माइनस ऑफ VO डिवाइडेड बाय UO इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस कितना आया? 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FE. सो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज क्रिएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और द नियर पॉइंट. या फिर 25 सेंटीमीटर में अगर इमेज क्रिएट होगा, दिस इज द मैग्निफिकेशन. सो लेट अस राइट इट डाउन एज MD. राइट. चलो दूसरे वाले केस में चलते हैं. केस 2. राइट इट डाउन. इफ द फाइनल इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट फार पॉइंट FP. फार पॉइंट मतलब कौन सा रहता है? इंफिनिटी ना. If the final image is produced at infinity भी लिख सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then magnification of eyepiece is
then magnification of eyepiece is ME का फॉर्मूला क्या आ जाता है, बस ये 1 नहीं रहता उस केस में इन्फिनिटी में, so therefore it will be D divided by the focal length FE. so ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो हमें पता है, so write it down. Hence magnification of scope is, hence the magnification of microscope is compound microscope basically. M is equals to MO into ME. MO का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस ऑफ VO डिवाइडेड बाय UO इंटू ME का फॉर्मूला क्या आया, ME का फॉर्मूला आ गया D डिवाइडेड बाय FE. So this is the magnification when the image is created at infinity. So invoke this formula. So these are the two extreme cases, and whenever the image is kept in between the least distance of distinct vision and infinity, then the magnification will be in between these two. इन दोनों के बीच में होगा. अच्छा, कोई मुझे बता सकते हो कि ये सामने जो माइनस माइनस लगा हुआ है इसका मतलब? सामने ये माइनस लगा हुआ है ना, माइनस माइनस, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब हो रहा है? इमेज उल्टा होगा, इमेज विल बी इन्वर्टेड. हियर यू सी ऑब्जेक्ट इज हेडिंग अपवर्ड, then the image is heading downward, so image is inverted. अच्छा देखो, अगर हम ट्यूब लेंथ की अगर बात करेंगे, ट्यूब लेंथ मतलब क्या है, ट्यूब लेंथ मींस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट इमेज प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस, that will be equals to VO plus UE. This is called as tube length. So therefore next topic जो हम देखने वाले हैं that is called as tube length. So write it down, tube length. इसको L से डिनोट किया जाता है. So write down what is tube length. It is the distance between, it is the distance between objective and eyepiece of microscope. Objective and eyepiece of microscope. ट्यूब लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, L इज इक्वल टू क्या आया हमारा, L इज इक्वल टू, अरे अभी अभी दिखाया था मैंने, देखो ट्यूब लेंथ इज बेसिकली दिस लेंथ. ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू VO प्लस UE. डन. सो लेट्स टॉक अबाउट ट्यूब लेंथ. L will be equals to VO plus UE. हो गया. Now we write it down. If the final image is produced at far point, if the final image is produced at far point, far point मतलब क्या है, इंफिनिटी. इंफिनिटी में अगर इमेज क्रिएट हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस में है, isn't it? देखो यहाँ देखो, अगर मुझे ये इमेज को इंफिनिटी में क्रिएट करना होगा, ये जो ऑब्जेक्ट की तरह जो बिहेव कर रहा है, इट विल बी एट द फोकस. फोकस में होगा मतलब ये UE का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस UE will be equals to focal length FE. So that is implied then UE will be equals to FE. So therefore here you can write it down that then UE will be equals to FE. That is implied then what is the focal length? That is implied then what will be the tube length? Tube length L will be equals to VO plus FE. VO plus FE. Yes, focal length of eyepiece. So ये दोनों केसेस को याद रखना. कभी कभार ट्यूब लेंथ के बारे में पूछता है या फिर मैग्निफिकेशन के बारे में पूछता है. हाँ, एक और चीज रहता है कि कभी कभार ऐसा रहता है कि ट्यूब लेंथ दिया हुआ रहता है, तो फिर हमें कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेना पड़ता है. सो मेक ए स्टार मार्क एंड राइट इट डाउन.
कभी कभार क्या होता है, ट्यूब लेंथ दे दिया रहता है, ट्यूब लेंथ अगर दे दिया है तो फिर देखो चीजें क्या हो रहा है यहाँ पे, वी कांट measure the VO so easily because it is inside the tube. ये जो VO है ये ट्यूब के अंदर रहता है, तो फिर क्या होता है, we can't measure it even though we can calculate it, calculation will take time. So that is why इसको क्या approximate किया जाता है, ये VO का वैल्यू और ट्यूब लेंथ का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है बोल के approximate किया जाता है. So therefore make a star mark and write it down. In certain questions, एक स्टार मार्क देख लिखो. In certain questions, if the tube length is given, if the tube length is given or asked, tube length दिया हुआ है या मांगा है, then following approximations we can make. Then following approximations we can make. क्या क्या approximations हम कर सकते हैं अगर ट्यूब लेंथ दिया हुआ है या फिर मांगा हुआ है, तो फिर we can approximate that the object distance from the objective is equal to focal length of the objective. क्यों? Here you can write down as object is kept near to focus. अभी देखो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बहुत छोटा है, उसका फोकस बहुत छोटा है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम उसी के आसपास ही रख लेते हैं. So that is implied then we can take that UO will be equal to FO. हम ऐसा करके approximate कर सकते हैं. And also we can have another approximation that VO will be equal to tube length L. Why? As the first image is created near to eyepiece. Near to eyepiece. देखो exactly नहीं होगा, but we can do certain approximations to get an approximate answer, right? But otherwise exactly ऐसा नहीं होता. But हाँ, हमारा बोर्ड के questions में जितना भी questions आता है, in fact in certain cases in NEET, we can use these approximations. उससे क्या होता है, हमारा काम चल जाता है. So here you can write down hence magnification का formula हमारा क्या क्या आया था, दो cases था ना, when the image is created at least distance of distinct vision and when the image is created at infinity. So M will be equals to, you can write it down then, minus of VO will be equals to L divided by UO will be equals to FO. L divided by FO into 1 plus D divided by FE. Under what case? If the final image is at near point. Secondly, if the final image has infinity, what will happen? It will be minus of VO की जगह में हम L लिख लेंगे और EO की जगह में हम F लिख लेंगे into D divided by FE. If the final image is at infinity, is at far point or infinity. Near point मतलब D. So these are the formula. हो गया. देखो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बस तुम्हें समझना होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको सोचना है, दैट्स ऑल. अदरवाइज क्वेश्चंस वोंट बी दैट मच डिफिकल्ट, राइट? ओके, ध्यान के रखो एक और चीज, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब हमारे आंख में ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट नहीं हो रहा है. स्ट्रेन मतलब क्या है? आंख में ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है. दैट मींस the image is created at infinity. So under that case, that means ciliary muscle is least strained, not at all strained. So that case is called as normal adjustment, जहाँ पे कि आंख पे ज्यादा पेन नहीं होता. So let us go and start solving certain problems. कुछ problems हम solve करना start करते हैं. चलो, ये आ गया problem. सब लोगों ने लिख लिए सब कुछ? Yes or no?
Yes, sir. चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, a compound microscope with an objective of 1 centimeter focal length. So ये FO है and eyepiece 2 centimeter of focal length, ये है FE. FO दे दिया, FE दे दिया. Has a tube length मतलब क्या है, L दे दिया. Calculate the magnifying power of microscope for the final image at NP and FP. Near point and far point. Near point मतलब क्या है, least distance of distinct vision. Far point मतलब क्या है, infinity. Least distance मतलब 25 centimeter basically. So इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? For the magnification at least distance of distinct vision, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? जस्ट अभी भी मैंने बताया, माइनस ऑफ L divided by FO into 1 plus D divided by FE. Use the formula and get the answer. If we are going to create the image at infinity, and infinity will be equal to minus of L divided by FO into D divided by F. बस कैलकुलेट कर लो सब चीजें, डिटेल्स दिया हुआ है. So minus 170. Sorry, 270. अच्छा MD, M infinity, So minus 250 infinity वाला और 270 MD. ओके. ये माइनस का मतलब समझ में आ रहा है? माइनस का क्या मतलब होता है? Inverted. इन्वर्टेड इमेज. वेरी गुड. चलो सेकंड क्वेश्चन में मुझे डिटेल्स बताओ, क्या क्या दिया हुआ है. क्या क्या दिया हुआ है? So focal length दिया हुआ है. ओके, कौन सा फोकल लेंथ किसका है? फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव का, सेकंड वाला आईपीस का. कैसे कैसे बता? So पहले वाला छोटा है इसलिए. एग्जैक्टली. माइक्रोस्कोप में पहला वाला जो रहता है उसका फोकल लेंथ छोटा रहता है, इसलिए दिस वन विल बी FO एंड दिस वन विल बी FE. FO और FE दे दिया है. तुम्हें बोला है डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप सच दैट इट्स मैग्निफिकेशन 30 होना चाहिए. अच्छा, मैग्निफिकेशन 30 होना चाहिए मतलब हाँ ओके. चलो करके दिखाओ. कैसे करेंगे हम? ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सॉरी फाइनल इमेज को हम कहाँ पे रखेंगे? दोनों जगह में रख के देखते हैं. ठीक, चलो. इफ द फाइनल इमेज इज क्रिएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो फिर निकालो कि क्या होगा. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन M का वैल्यू दे दिया, तुम्हें बस L का वैल्यू निकालना है. So that means this formula is given, everything is given, you need to calculate just L, right? चलो कैलकुलेट करो. अच्छा, इसमें एक और मिस्टेक होने का चांसेस है. देखो हियर इट इज सेड दैट द मैग्निफिकेशन इज 30, मतलब यहाँ पे अगर तुम 30 ले रहे हो तो फिर कुछ मिस्टेक होने का चांसेस है, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज 30, इट इज नॉट सेइंग दैट इट इज इन्वर्टेड. सो इस केस में तुम्हें -30 लेना होगा, -30, so that ये माइनस माइनस will be getting cancelled and then you can calculate the value of L very easily, right? चलो निकालो.
So first के लिए फर्स्ट के लिए एल का वैल्यू कितना है? 6.25. L is equals to 6.25 सेंटीमीटर. Yes sir. ओके. ओके, सेकंड वाला. No one is getting the answer. Apurva, Pranati, Sanjana. Sir, 7.5. 7.5. Okay, great. Others are also getting the same answer. So देखो, maybe there will be certain questions जिसमें कि तुम्हें clearly नहीं दिया होगा इसी टाइप का क्वेश्चन में कि आखिर L का वैल्यू किसके लिए लिए. Generally we prefer to see an object at the least distance of distinct vision. ऐसा क्यों? इससे क्या होता है, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा रहता है और चीजें बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं. हाँ, I accept that there will be strain in our eye, it will be painful, but yes, the work is very efficient one because magnification is very large. So that is why मान लो तुम्हें क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक ही वैल्यू मांगा है, so you'll be telling them the answer about this one, right? चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, तुम लोग मुझे बताओ. What all the things are given in the question and what all the things it is asking you about? No one? Chalo, start it. The total magnification produced by a compound microscope is 20. Yes, okay. Compound microscope is creating a magnification of 20, while that produced by eyepiece alone is 5. So ME is equals to this one. So हमारा MO कितना हो जाएगा? 4. Yes or no? So here you see magnification of objective will be equals to total magnification divided by magnification of eyepiece. So therefore this will be equals to 20 divided by 5, that will be equals to 4. आगे देखते हैं. When the microscope is focused on a certain object, the distance between the objective and eyepiece is 14 centimeter. So that means here the tube length is given. L का value दे दिया है. Find the focal length of objective and eyepiece with the distance of distinct. If the अच्छा यहाँ पे least distance होना चाहिए. Least distance of distinct vision is 20 centimeter. उसका मतलब क्या बोला है? Least distance of distinct vision उस person के लिए 20 सेंटीमीटर है. डी का वैल्यू 20 दिया हुआ है, राइट? एल का वैल्यू दे दिया है. क्या क्या मांगा हुआ है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव और आईपीस का फोकल लेंथ निकालो, राइट? इमेज कहाँ पे क्रिएट किया गया है? ओके, सो हियर ओके, इमेज इज क्रिएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. हम ऐसा देख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट कहीं पे बोला नहीं है. यस, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला नहीं है. So therefore, if the image is created at least distance of distinct vision, can you just do the calculation? Yes, we can calculate that. Magnification of eyepiece, this will be equals to 1 plus D divided by FE. And magnification of eyepiece is given to be 5. 5 will be equals to 1 plus D is equals to 20 divided by FE. So that is implied then 20 divided by FE, this will be equals to 4. So that is implied then FE will be equals to 5 centimeter.
ओ सॉरी, आईपीस का फोकल लेंथ दे दिया है ना? नो सॉरी, this is the eyepiece magnification 5. Yes, focal length of eyepiece we are getting it to be 5 centimeter. यहाँ से हमें आ गया. अभी focal length of objective हम कैसे निकालेंगे? Focal length of objective, देखो total magnification दिया हुआ है 20. So we can put the basic formula. 20 that will be minus 20 will be equals to tube length, that is minus of tube length L is equals to 14 divided by focal length of objective into 1 plus D by FE. 1 plus D by FE का वैल्यू कितना आ रहा है? ये 1 plus D by FE का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है. This one is given to be 5. So can you all calculate FO? यहीं से ही आ जाएगा तुम्हें. So that is implied then minus minus को cancel कर दो. FO will be equals to 14 into 5 divided by 20. So 70 divided by 20. That will be equals to 3.5 centimeter. Yes, is it done? देखो देखो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Okay. So चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. And magnifying power of 30x. 30x मतलब क्या है? Magnification is 30. Is desired using an objective of focal length this much and an eyepiece of focal length this much. Calculate the object distance from the objective and the tube length of the compound microscope. Okay, चलो बात करते हैं हम इसका. So total magnification is given as 30, where the focal length of objective is this one, FO, and focal length of eyepiece is this one, FE. Calculate the object distance from the objective and the tube length of the compound microscope. Okay. ठीक है, चलो हम नॉर्मल फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं. नॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से m is equals to minus of VO divided by UO into 1 plus D divided by FE if the image is created at least distance of distinct vision. So इसमें हमें क्या क्या चीजें पता है? मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता है, FE का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, मतलब ये टर्म पता है, लेकिन ये दोनों चीजें हमें नहीं पता. हमें ये दोनों चीजें U का वैल्यू स्पेशली निकालना है. लेकिन इसका हमें एक और फॉर्मूला मिला था ना, VO का वैल्यू वी कैन फाइंड इट आउट, इजंट इट? कैसे निकालेंगे हम? 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. So that is implied then 1 by VO minus 1 by UO. UO का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 by V minus 1 by U. U का वैल्यू minus UO हो जाएगा. That will be equals to 1 by F. Minus UO क्यों हो रहा है? Because it is on the left hand side. Object is on the left hand side of the objective, so that is why it is minus UO. So therefore यहाँ से VO का वैल्यू कितना आएगा? देखो तो 1 by VO, this will be equals to 1 by F minus 1 by U. Sorry, 1 by FO minus 1 by UO. So therefore this will be equals to UOFO into UO minus FO. This is 1 by VO. So that is implied then VO will be equals to UOFO divided by UO minus FO. V का वैल्यू को लेके उसमें पुट कर लो. उसमें अगर हम पुट कर रहे हैं, हमारा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आ रहा है, M will be equals to minus UOFO divided by UO minus FO into 1 plus divided by UO is there, divided by UO
into 1 plus d divided by fe. क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? UO and UO are getting cancelled, and what is left is, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डेराइव भी कर चुका हूँ, माइनस ऑफ FO divided by UO minus FO into 1 plus D divided by FE, and this is equals to M. अभी देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया गया है हमें. Here M value is given to be 30, FE is given to be कितना कुछ तो दिया गया है 5 centimeter, and this one is 1.25 centimeter. So this one is 5, this one is 1.25, and this one is 1.25, and this one is 25. All of us know it. So can you get the value of UO at here? Yes, put the values and get the answer. So 30 will be equals to minus of 1.25 को हम लोग लिख सकते हैं 5/4 divided by UO minus 5/4 into 1 plus D is equals to 25 divided by 5. इसको सॉल्व करो और UO का वैल्यू निकाल लो. So this magnification will be minus 30 basically because inverted image create होता है. So minus minus are getting cancelled out. This one is coming out to be 6, 5 ja, and what is left is 5 will be equals to 5 divided by 4 UO minus 5. So that is implied then 5 are getting cancelled. So that is implied then 4 UO minus 5, this will be equals to 1. So that is implied then 4 UO will be equals to 6. That is implied then UO will be equals to 6 by 4. That will be equals to 3 by 2. That will be equals to 1.5 centimeter. UO का वैल्यू आ गया, right? .5 centimeter. Question इसने I think काफी लंबा पूछ लिया है. Calculate the object distance of objective and the tube length of the compound microscope. नहीं, tube length नहीं चाहिए इसके लिए. This much will be good enough. इससे ज्यादा नहीं चाहिए. Okay, बाद में जाके ये वीडियो देख के एक बार समझ लेना इन चीजों को. In case if you are facing any doubt, you can ask me later on also. Okay, let's move to the next concept. So देखो, हमने छोटा ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं ये हमने देख लिया यूजिंग माइक्रोस्कोप. बट देन व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फार पॉइंट? हम जहां तक देख सकते हैं उससे भी अगर ज्यादा दूर हो गया, फॉर एग्जांपल मून, फॉर एग्जांपल अदर प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल ए सैटेलाइट, उनको हम कैसे देखें, कैसे स्टडी करें? सो फॉर दैट केस द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एज टेलीस्कोप. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेलीस्कोप. So write down the headline, telescope. पहला टेलीस्कोप जो हम पढ़ने वाले हैं, that is called as refracting telescope. So पहले ह्यूमन आई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हो जाएगा चौथा, refracting telescope. So what is a telescope? Telescope is the instrument which is used to see the objects which are far beyond our far point. So therefore write down, telescope is an optical device. Telescope is an optical device used to see distant objects. Used to see distant objects. Refracting telescope. Refracting telescope जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी,
uses the principle of refraction, uses the principle of refraction see celestial objects, to see celestial objects like moon, stars, planets, satellites, etc. celestial objects समझ में आ रहे हैं? सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल्स रहता है. टेरेस्ट्रियल्स मतलब ये हमारे अर्थ में जो सब कुछ चीजें रहता है, दूर का चीजें, पास का चीजें, दोस आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल्स. सेलेस्टियल्स मतलब जो आसमान में जो रहता है. So celestial objects, those are called as. So now this is what is refracting telescope. So चलो हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये आखिर बनता कैसे है. कंस्ट्रक्शन, write it down. It uses two convex lenses. It uses two convex lenses, namely objective and eyepiece. Namely objective and eyepiece. Comma देख लिखना. Comma, namely objective and eyepiece. Comma and placed coaxial in a tube. Placed coaxial in a tube. चलो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात कर लेते हैं. Lens. This is the first one. Write down which type of objective lens is used. It is a convex lens of length and large aperture. It is a convex lens of large focal length and large aperture. अच्छा, इसका एपर्चर को लार्ज क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब भी हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, वहां से लाइट्स कम आता है. फॉर एग्जांपल ये प्लैनेट से लाइट कम आता है, या फिर अर्थ में पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता है. सो उसका अगर हमें इमेज क्रिएट करना है तो हमें सफिशिएंट लाइट्स चाहिए. दैट इज व्हाई द लेंस दैट वी आर यूजिंग, इट्स एरिया विल बी लार्जर. ज्यादा एपर्चर होने से क्या होता है, उसका एरिया ज्यादा रहता है. इफेक्टिव एरिया इज कॉल्ड एपर्चर. सो उतना इफेक्टिव एरिया में ज्यादा लाइट्स आएंगे. ज्यादा लाइट्स आएंगे तो फिर ज्यादा लाइट से इमेज जो बनेगा वो ब्राइट बनेगा. सो इसलिए ब्राइट इमेज के लिए उसका ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए क्लियर इमेज ऐसा किया जाता है, राइट. और सेकेंडली ऑब्जेक्टिव लेंस किस साइड में रहेगा? ऑब्जेक्ट के साइड में रहेगा. सो देयरफॉर लिख लो, इट फेसेस द ऑब्जेक्ट. It faces the object. In addition, you write it down. Its aperture is kept large. Its aperture is kept large to collect sufficient light from the object. To collect sufficient light from the object for a bright image formation. For a bright image formation. अदरवाइज क्या होता है, इमेज अगर ज्यादा ब्राइट नहीं होगा तो फिर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छे से देख नहीं पाएंगे, अंधेरे में नहीं देख पाएंगे. ओके, सेकंड वन, आईपीस. आईपीस लेंस. It is a convex lens of small focal length and small aperture. It is a convex lens of small focal length and small aperture. अच्छा, आईपीस किस साइड में रहेगा? नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये आई की तरफ रहेगा, ऑब्जर्वर की तरफ रहेगा. सो राइट इट डाउन. Small focal length and small aperture. It is placed near to eye, और ऑब्जर्वर भी लिख सकते हो. अच्छा, इसका एपर्चर को हमने छोटा क्यों रखे?
बिकॉज द रेज ऑफ लाइट दोस हैज बीन कलेक्टेड, पहला जो कन्वेक्स लेंस जो रहेगा वो ऑलरेडी उसको कन्वर्ज कर देगा। जो जितना भी ज्यादा रे है ये सारा का सारा कन्वर्ज हो चुके हैं ऑलरेडी, कन्वर्ज होके ये लोग इमेज फॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इससे जो लाइट आएगा इसको अगर और कन्वर्ज करना है सो हमें और इतना ज्यादा बड़ा लेंस और नहीं चाहिए, छोटा लेंस से भी काम चल जाएगा। So that is why we are using a small aperture lens. So therefore write it down at there. The aperture of eyepiece is kept small. The aperture of eyepiece is kept small because it has to converge. Because it has to converge a bunch of rays. A bunch of rays those has already been converged. Those has already been converged. जो कन्वर्ज हो चुका है उसको कन्वर्ज करना है, तो उतना ज्यादा एरिया हमें नहीं चाहिए, तो छोटा एरिया से भी हमारा काम चल सकता है। अगर बड़ा एरिया वाला फिर से ले लेंगे तो फिर हमारा इमेज फॉर्मेशन में जो क्लियर इमेज जो आना चाहिए वो थोड़ा सा ब्लड आ सकता है। सो दैट इज व्हाई हम थोड़ा सा छोटा वाला ले लिए। सो चलो देखते हैं इसका आखिर मैग्निफिकेशन कैसा होगा। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल instrument, we'll talk about only magnification, and it is not the normal magnification, it is the angular magnification. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज को हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, सो चलो देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा इस केस में। सो लेट अस कंसीडर कि मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को। हियर इज द ऑब्जेक्ट, बहुत दूर पे है ये, एंड हियर आई एम ऑब्जर्विंग इट। Here is my eye. It is at certain distance. And it is creating an angle which is denoted by alpha. Alpha से denote कर लेते हैं, मतलब ये angular size इसका हो गया alpha. So therefore here you can write it down. So angular size of object is equals to alpha. ये हमें पता चल गया। अभी चलो हम टेलीस्कोप को यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैसा रहता है, पहले एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस की तरह यूज करेंगे। ओके, हियर इज वन लेंस जिसका कि एपर्चर बड़ा है ताकि बहुत ज्यादा लाइट वो कलेक्ट कर पाएगा। And then we are going to use another lens at here, जिसका कि एपर्चर छोटा है। So now let us consider the object is at infinity. Infinity मतलब बहुत ज्यादा दूर में है, यहीं पे कहीं पे वो ऑब्जेक्ट है। So if the object is at infinity, the rays that are coming towards us, those rays will remain parallel. So infinity से जब इंसिडेंट रेज आता है, they becomes parallel. So यहाँ से मैं parallel rays को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से मान लो parallel rays आ रहे हैं। So the ray of light that is passing through the optical center will go undeviated, and the ray of light, other ray of light, these are the incident rays from the object which is at infinity, ये parallel आ रहा है। तो फिर ये भी तो अल्फा एंगल क्रिएट करेंगे ना, जैसे हमारा ये इस आई के केस में ये अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, इस केस में so therefore this angle will be alpha. अभी देखो सेकेंड रे जो है इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास होगा।
राइट, फोकस से पास हो गया। अगर ये फोकस से पास हो रहा है, यू सी द टू रिफ्लेक्टेड रेज दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। इफ दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, द इमेज विल बी क्रिएटेड, द फर्स्ट इमेज विल बी क्रिएटेड एट हियर। यहाँ पे पहला इमेज क्रिएट हो जाएगा, राइट। सेकेंड इमेज कहाँ पे होगा? सेकेंड इमेज जो होगा, देखो ये ऐसे रहता है, such that one ray will pass through the optical center. Optical center से pass होने से any ray passing through the optical center will go undeviated. Another ray will go parallel to the principal axis, and the ray which is going parallel to principal axis, it will be passing through the focus. Focus से ही pass होगा। फोकस से पास होने से क्या होगा? Here is one incident ray, here is another incident ray, here is one reflected ray, here is another reflected ray. ये दोनों diverge हो रहे हैं। If these two are diverging, then they are not going to meet at all. ये आगे जाके और मिलेंगे नहीं तो फिर हमें क्या करना होगा? इनको बैकट्रेस करना होगा इनका इमेज क्रिएशन के लिए। बैकट्रेस कर लो। Upon backtracing, they are meeting at here. So that is implied that its image will be created at here. कोई और कलर का मैं ले लेता हूँ। Let us say I'm taking this color. So this will be the final image. Is this color is visible? पता नहीं, ठीक है। This will be the final image. So draw the diagram. अभी बाकी डिटेल्स मैं बताऊंगा तुम लोगों को। Okay, so now you see here. So first of all, if the object is at infinity, the image is created at focus. So image अगर focus में create होता है तो फिर ये जो distance होगा, this will be basically the focal length of the objective. F, focal length of the objective. Is this color is visible? Tell me frankly. Yes, sir. Okay, ठीक है. So this will be the focal length F4, and this will be the object distance for the eyepiece. This will be object distance UE for the eyepiece UE, right? अभी देखो, this is the first image size H, and this is the second image size. We can take it as H dash. Details मैंने लिख लिया है, right? Now we can start writing it down. चीजें हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो, ये एंगल अगर अल्फा हो गया तो फिर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा ना। So we can write it down that this angle will also be alpha. ये एंगल भी अल्फा होगा। Okay. So here you can write it down. So angular size of object. So angular size of object, this will be equals to alpha. इसको हम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं 10 अल्फा के साथ। अगर एंगल अगर छोटा हुआ तो फिर दैट विल बी अप्रोक्सीमेटेडली इक्वल्स टू 10 अल्फा, और 10 अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में? 10 अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा। Is anyone please? Can you see this triangle? 10 अल्फा का वैल्यू बताओ। H divided by FO. So this will be equals to H divided by FO. So therefore we can write it down that alpha will be equals to H divided by FO. So similarly we can write it down that angular size of image, angular size of image, this will be equals to angular size हम किसको ले सकते हैं? देखो ये है इमेज और हमारा आई कहाँ पे रहेगा? हमारा आई रहेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक आई ड्रॉ कर लेता हूँ। हम इस साइड से देखेंगे चीजों को। So that is implied in the angular size of image will be, this one will be angular size of image,
बीटा। आईपीस में वो जितना एंगल क्रिएट करेगा दैट विल बी द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। देखो ना, अगर मैं ऐसे करके रखता हूँ, सो अगर ये आईपीस नहीं है तो फिर आंख में भी eye is just behind the eyepiece, so that is implied and it creates same angle with the eyepiece as well. So therefore beta का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? This will be equals to beta, and beta will be approximately equals to 10 beta. 10 beta का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 beta, 10 beta, 10 beta. You see this triangle first of all, ये वाला ट्राइंगल देख लो। 10 बीटा बताओ, एच डेस डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। लेकिन हम इससे नहीं बता सकते। हम 10 बीटा कैसे बता सकते हैं? ये छोटा वाला ट्राइंगल को देखो। छोटा वाला ट्राइंगल को अगर देखेंगे, इट विल बी एच डिवाइडेड बाय यूई। सो देयरफॉर राइट इट डाउन, दिस विल बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय यूई। सो दैट इज इंप्लाइड दैट बीटा का वैल्यू क्या आ गया? बीटा कैन आल्सो बी रिटन एज एच डिवाइडेड बाय यूई। So हमारा आ गया अल्फा, हमारा आ गया बीटा। So write down, so magnifying power of telescope, so magnifying power of telescope this will be equals to m is equals to क्या होगा? Angular size of image, that is beta, divided by angular size of object, that is alpha. बीटा का वैल्यू क्या है? h डिवाइडेड बाय ue। अल्फा का वैल्यू क्या है? h डिवाइडेड बाय क्या आया था हमारा? fo. So h are getting cancelled and we are getting it to be, that is implied that m will be equals to fo divided by ue. ये वाला हमारा फॉर्मूला आ गया, राइट? पर इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस होगा ना, क्योंकि सेकंड केस में यूई का वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। सो दैट इज इंप्लाइड यहाँ पे हमारे एक माइनस साइन लग जाएगा, माइनस यूई। सो देयरफॉर माइनस ऑफ एफओ डिवाइडेड बाय यूई, राइट? यहाँ पे भी माइनस रह जाएगा। ओके, सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। अभी देखो, इमेज को हम दो जगह में क्रिएट कर सकते हैं, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स। पहला एक्सट्रीम पॉइंट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट एंड द नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट इज एट इंफिनिटी फार पॉइंट। सो देयरफॉर चलो केस 1 के बारे में बात करते हैं। केस 1, write down, if the final image is created at near point, if the final image is created at near point, this is case 1. Then you can write it down that using lens formula for eyepiece, we can write down that u का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? u will be equals to minus of ub. v is equals to क्या हो जाएगा? इमेज इज क्रिएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ना, सो इट विल बी माइनस d। लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट हो रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए नेगेटिव हो गया। अब एंड फोकल लेंथ क्या होगा? f is equals to fe, because it is a convex lens, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला इज 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. Put the formulas. 1 by v means 1 by minus d, and then minus 1 by minus ue, that will be equals to 1 by fe. So that is implied then ue का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? That is implied then 1 by ue will be equals to 1 by fe plus 1 by d. So that is implied then ue is equals to, अच्छा 1 by ue आ गया ना? हाँ आ गया almost. 1 by ue is equals to ये आ गया. So this will be equals to d plus fe, or you can write down that d plus fe divided by d into fe. So that is implied then magnification क्या हो जाएगा? m will be equals to minus of, फॉर्मूला अपना क्या आया था? fo divided by ue, fo divided by ue. So this can also be written as minus of fo into 1 by ue. चलो मल्टीप्लाई कर लो,
On multiplication, you can write down that minus of FO into D plus FE divided by D into FE. So let's rearrange them. Minus of FO divided by FE into D plus FE divided by D. So this can also be written as magnification at least distance of distinct division MD will be equals to minus of FO divided by FE into 1 plus FE divided by D. इसको इनबॉक्स कर लो. Least distance of distinct division में ये हो जाएगा magnification for the telescope. कुछ नहीं, बस UE का वैल्यू मैंने निकाल के उसमें पुट कर दिया, that's all, और कुछ नहीं है. Similarly, if the image is created at infinity, UE का वैल्यू को मैं निकालूंगा, उसमें पुट कर दूंगा, हो गया. सेकंड केस भी, राइट? सो केस 2 में लिख लो, if the image is created at far point or infinity, that is implied, then what will be the object distance? Object distance will be equals to the focal length FE. So that is implied, then what will be the magnification? Magnification M will be equals to minus of FO by FE minus of FO divided by UE की जगह में FE put कर लो. So that is implied, then magnification at infinity, when the image is created at infinity, M infinity, this will be equals to minus of FO divided by FE. हो गया फॉर्मूला, हो गया. सो जिस तरह से हमने माइक्रोस्कोप के लिए निकाला था MD and M infinity, हमने इसके लिए भी निकाल लिया MD and M infinity. So this is what is the refractive telescope, and this refractive telescope is also called as astronomical telescope. इसलिए ये हेडलाइन पे लिख लो जहां पे refractive telescope लिखे थे, astronomical telescope. Astronomical telescope. This is done, refracting telescope. And the last one is refracting telescope. Let us write it down, the final one, reflecting telescope. इसका मतलब क्या हो सकता है, नाम से बताओ क्या लगता है? सिंपल, इट इज ए टेलीस्कोप, पहला चीज जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे. सेकेंडली रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग फेनोमेना को यूज कर रहा होगा, राइट? सो राइट डाउन, it is an optical device. It is an optical device used to see distant objects. ये लास्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा. Distant objects using the laws of reflection. ओके, देखो इसमें क्या होता है. जो कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा, पहले समझा देता हूं. यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव मिरर ले लेंगे. यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्टिव मिरर ले लिए, राइट? सो दिस इज वन ऑब्जेक्टिव मिरर. ड्रॉ करना बाद में, देख लो कि क्या कर रहा हूं. इसको मैंने चारों साइड से क्लोज कर दिया. ड्रॉ करने के लिए मैं टाइम दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी. ओके, अभी देखो बीच में मैंने क्या किया, इसके सेंटर में मैंने एक होल कर दिया. ओके, एंड इसका डेफिनेटली व्हेनेवर
any ray which is coming from infinity से कोई भी ray आ गया तो फिर क्या होगा, ऐसे पैरेलल आएगा और ये भी ऐसे करके पैरेलल आएगा। पैरेलल आने के बाद ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके फोकस में रिफ्लेक्शन होके जाएगा, फोकस में जाएगा। बट बिफोर दे आर रीचिंग टू फोकस हम क्या करेंगे, एक और मिरर रख लेंगे। सो लेट अस कंसीडर दिस इज द फोकस, this is the focus. So and before this one we'll keep one another mirror, बीच में हम एक और मिरर रख लेंगे यहाँ पे, but this will be one convex one. So the rays of light which is coming from infinity, they will try to come towards the focus, focus की तरफ वो आने का ट्राई करेगा, but again mirror is there, and because mirror is there they will again get reflected back into the hole, hole के अंदर ये reflect हो जाएगा। ऐसे करके लिखेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली इसके केस में क्या होगा, ये फोकस की तरफ जाने का ट्राई करेगा, but then because the mirror is there it will be reflected back into the hole. So this is the path, and then on this side what we are doing, we are keeping one eyepiece, eyepiece lens हम यहाँ पे इसको रख लेंगे। तो फिर ये क्या करेगा, हमारा इमेज को यहाँ पे क्रिएट कर देगा, एंड ऑन दिस साइड विल बी लुकिंग एट द distant objects. So this is the reflecting telescope. कुछ नहीं, मैंने बस एक concave lens लिया। So कोई भी parallel ray distant object से जो भी ray आ रहा है, it will be coming parallel. After that one, it will be reflecting towards the focus. Before they are reaching to the focus, I am keeping one another convex lens, convex mirror, because of which they are getting reflected back into the holes. और hole में जाके मैंने यहाँ पे eyepiece को लगा के रख लिया है, eyepiece यहाँ पे लगा के रखा हुआ है और इस साइड से मैं देखूंगा इसको। So now all of you can start drawing this diagram. इसको ड्रॉ कर लो, इसमें डिटेल्स में लिख लेता हूं। So the first one is called as objective mirror. This one is basically objective mirror. And because it is like paraboidal shape, it is called as paraboidal objective mirror. Secondly, ये तो हो गया focus. This is called as secondary mirror. And this one is called as eyepiece. Eyepiece. ओके, डायग्राम होने के बाद बोलना, हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे और खत्म कर देंगे, इसका एडवांटेज लिख लेंगे। Okay, is it over? No, not yet. खत्म होने से बोलना।
Is the diagram is over? Yes, sir. ओके ठीक है। सो चलो हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और बस बाकी है, लिख लो इस इन चीजों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया है, अभी इसको लिख लो। कंस्ट्रक्शन था, क्या स्ट्रक्चर है इसका। कंस्ट्रक्शन, अच्छा इस टाइप का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है इसको बोला जाता है कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक और भी रहता है न्यूटोनियन टाइप का, ये होता है कैसिग्रेन। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, साइंटिस्ट का नाम। Okay, write it down. A Cassegrain reflecting telescope. A Cassegrain reflecting telescope consists of a large concave paraboloidal mirror, ब्रैकेट में लिख लो प्राइमरी, ब्रैकेट क्लोज, having a hole at its center, होल होगा इसका। Full stop. There is a small convex mirror. ब्रैकेट में लिख लो सेकेंडरी, ये सेकेंडरी मिरर है, सेकेंडरी क्लोज कर लो। Near the focus of the primary mirror, full stop. The eyepiece is placed on the axis of the telescope, near the hole of the primary mirror. तो तीन चीजें हो गया, प्राइमरी मिरर है उसके सेंटर में होल है, सेकेंडरी मिरर है जो कि फोकस से पहले है, एंड आईपीस है जो कि होल के बगल में है। नेक्स्ट लेट अस गो एंड टॉक अबाउट वर्किंग। काम आखिर ये कैसे कर रहा है, सिंपल डायग्राम से भी इसको ये चीजें समझ में आ जाएगा। ऐसे पैरेलल रे आएंगे इंसिडेंट रे जो कि इनफाइनाइट से आएंगे। हियर यू कैन राइट डाउन, दीज आर द पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इसीलिए रेज विल बी पैरेलल रेज आएंगे, they will try to get converged, but because the other mirror is there they will be getting reflected back, and because of the lens they will create one image. That's all. Chalo write it down. Working. The parallel rays from the distant object are reflected by the large concave mirror, अभी देखो पैरेलल आ रहे मतलब कहाँ किस तरफ को रिफ्लेक्ट होंगे, फोकस
reflect होंगे, but before they will be getting again reflected by the secondary mirror. So therefore write down, before these rays come to focus, ये फोकस की तरफ आने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ। Before these rays come to focus, comma, they are reflected by the small convex mirror. They are reflected by the small convex mirror and image is created at the hole. And image is created at the hole. जहां पे भी ये reflected rays मिल गए वहीं पे ये image create हो जाएगा. And image is created at the hole. Comma, which can be seen through the eyepiece. Which can be seen through the eyepiece. अभी देखो इसका मैग्निफिकेशन रहता है लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं है, मैग्निफिकेशन का भी ज्यादा यूज नहीं है, बट फॉर्मूला जान के रखो, फॉर्मूला इट विल बी जस्ट सिमिलर टू द अदर टेलीस्कोप। हमारा प्रीवियस टेलीस्कोप में जो फॉर्मूला आया था वही आएगा, जस्ट द इमेज विल बी इरेक्ट। इरेक्ट है पहले, मतलब उसके जो सामने जो माइनस लगता था वो माइनस नहीं लगेगा, दैट्स ऑल। सो देयरफॉर मेक a star mark and write it down, and write it down. Magnification of this telescope, magnification of this telescope is just similar to refracting telescope, is just similar to refracting telescope. कोमा देखिए लिखना, just the image is real and erect, just the image is real and erect. मैग्निफिकेशन सिमिलर होगा, बस इमेज बस रियल और इरेक्ट होगा, दैट्स ऑल। इसका डेरिवेशन नहीं है, बट फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ द इमेज इज क्रिएटेड इन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्निफिकेशन md विल बी इक्वल टू, उस केस में जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला रहेगा, बस सामने का माइनस नहीं रहेगा। सो देयरफॉर उस केस में फॉर्मूला क्या था? f4 डिवाइडेड बाय fe into 1 प्लस fe डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला था ना, बस सामने एक माइनस था, वो माइनस को मैंने हटा दिया, दैट्स ऑल। So simply m infinity क्या हो जाएगा? m infinity will be equals to f4 divided by fe into fe divided by d. So इसमें क्या आ जाएगा? So this will also be equals to f4 divided by d. क्या? No sorry, मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया। No sorry, उस केस में f4 divided by fe आता था। Yes, f4 divided by fe आएगा, ये सेकेंड वाला इसको हटा दो, माइनस को बस हटा के यहाँ पे लिख लो f4 डिवाइडेड बाय fe। इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका फॉर्मूला भी बहुत रेयरली यूज होता है तुम्हारे बोर्ड में। ओके, नाउ व्हेन देयर इज अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? देयर मस्ट बी सम नीड ना, सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। So therefore this is the last topic for your this one, write it down. Advantages of the reflecting telescope over the refracting type. So write down first advantage, तीन एडवांटेज है वो लिख देते हैं, फिर क्लास को हम एंड कर देंगे। Write it down. Due to large aperture of primary mirror, due to large aperture of primary mirror, large amount of light is collected
large amount of light is collected for image formation, and hence more bright image is formed. इस केस में इमेज जो होता है वो ज्यादा ब्राइट होता है क्योंकि जो मिरर जो यूज कर रहे हैं इसका साइज जो रहता है लेंस से बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, सो दैट इज व्हाई इमेज जो आता है वो ज्यादा ब्राइट आता है, राइट? दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज देखो, इस केस में जो प्राइमरी मिरर जो रहता है वो उसका लेंस से ज्यादा बड़ा रहता है। सेकेंड, ड्यू टू लार्ज एपर्चर ऑफ मिरर, क्योंकि मिरर का जो प्राइमरी मिरर जो है उसका बहुत ज्यादा लार्ज एपर्चर रहता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैज हाई रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या रहता है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग तरह से देखना। कभी कभार क्या होता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक की तरह दिखते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं, सो दैट इज व्हाई देयर रिजॉल्विंग पावर इज लेस। लेकिन इस केस में क्या है, हमने मिरर यूज किए ना, सो ज्यादा साइज है, उसका एपर्चर बड़ा है, सो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग हाई रिजॉल्विंग पावर। सो देयरफॉर उसके बाद लिख लो हैज हाई रिजॉल्विंग पावर टू डिफरेंशिएट टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, And the third application, due to use of mirror, there is no chromatic aberration. क्रोमैटिक एबरेशन मतलब क्या होता है? देखो, जब भी एक इमेज बन रहा है, फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट से एक सिंगल कलर का लाइट तो नहीं आ रहा है ना, मल्टी कलर लाइट आ रहा है। सो वो जब लेंस से पास होता है, लेंस का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइट, द कलर ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सो उसके वजह से क्या होता है, अलग अलग कलर का जो लाइट्स जो आ रहे हैं वो अलग अलग पोजीशन में कन्वर्ज होंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, यहाँ से हमारा रेड आ रहा है, यहाँ से हमारा ब्लू आ रहा है, यहाँ से हमारा ग्रीन आ रहा है, राइट? सो देयरफॉर यहाँ पे मैं अगर एक लेंस ले लूंगा, मान लो ऐसे करके भिवगियर 7 कलर का लाइट आ रहा है, राइट? एक सेकेंड, हाँ मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, ऐसे करके पैरेलल रेज आ रहे हैं, यहाँ पे मान लो भिवगियर 7 कलर का लाइट आ रहा है। तो फिर इसमें क्या होगा, रेड कलर का एक जगह में कन्वर्ज होता है, ऑरेंज का एक जगह में, येलो का एक जगह में, ग्रीन का एक जगह में, ये बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ज होता है, इसलिए पता ज्यादा नहीं चलता, बट यस ऑफ कोर्स ये सब अलग अलग जगह में कन्वर्ज होता है, इसलिए इनका इमेज फॉर्मेशन जो होता है अलग अलग जगह में होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कलर ऑफ द लाइट, इट्स वेवलेंथ, इसी वजह से वो अलग अलग जगह में कन्वर्ज हो रहा है। इसीलिए दिस सॉर्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज क्रोमैटिक एबरेशन। इसकी वजह से क्या होता है, क्लियरली नहीं दिखता चीजें, इसीलिए लेंस को बहुत पतला रखा जाता है जनरली। सो देयरफॉर whenever we are using the mirror में ये क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होगा, क्योंकि म्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। So that is why due to use of mirror there is no chromatic aberration, and hence all the color of rays forms image at one point, एक ही पॉइंट में वो सब इमेज फॉर्म करती है, इसलिए इमेज ज्यादा क्वालिटेटिव इमेज रहता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसका मैंने 2-4 प्रॉब्लम्स सिलेक्ट किया हुआ है, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, में भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन आइडिया कि कैसे इन चीजों को हम सॉल्व करेंगे। बस सिंपल फॉर्मूलाज ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एक सेकेंड ना, यहाँ पे देखो
मैं ग्रीन कलर का यूज कर लेता हूँ. A small telescope has the objective lens. So ये दे दिया है FO और ये दे दिया है FE. FO और FE दे दिया. So can't you get the magnifying power at near point? Near point मतलब क्या है? MD. फॉर्मूला यूज कर लेना. And this one is M infinity. Just फॉर्मूला को यूज कर लेना. MD is equals to refracting telescope बोला ना? Yes, refracting telescope या reflecting telescope. Magnitude is remaining same. MD is equals to FO by FE into 1 plus FE by D. And M infinity is equals to FO by FE. Just फॉर्मूला को पुट कर लो, हो गया तुम्हारा आंसर. Similarly, सेकेंड वाला क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आइडिया. A small telescope has a focal length of, this one is objective focal length FO and eyepiece has focal length, this one FE. FO FE दे दिया. What is the magnifying power of the telescope for the viewing distant object when the telescope is normal adjustment? Normal adjustment मतलब क्या है? When the image is created at infinity. Magnifying power क्या हो जाएगा यहाँ पे? M infinity. So similarly ये वाला MD यही निकालना है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में भी सिमिलरली चीजें दिया हुआ है. यू कैन जस्ट एक बार सॉल्व करके देखना. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम. मैं भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. अभी 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है. So let's not move ahead anymore. Let's end the class at here. But yes, of course, all of you have to try this one. एक बार ट्राई करके देखो, सॉल्व करने का ट्राई करो. इन केस नहीं हो रहा है तो you can just ask me again, no problem, right? So let's end the class at here and we'll meet in our next class.